So let's start with today's lecture. It is in continuation of the topic which we were doing yesterday, introduced this yesterday, external direct product of groups. So we already now clear about what do we mean by external direct product of groups. That if you have a finite collection of groups G1, G2, Gn, then this which contains elements like G1, G2, Gn, where Gi belongs to Gi. So this set is a set of external direct product, and this actually is a group under the component wise operation. And then we already saw a few examples related to this, and one particular example जो हम कर रहे थे with actually वो finish हो गया था, but I would like to introduce it again because उसके बाद हम continue करेंगे. So we were doing this example. What is the external direct product of Z2 and Z3? And we proved that it turns out to be isomorphic to Z6. Before that, I also told you the result that if you have finite groups, that if G1, G2, Gn are finites, then the order of this group, because then it is also going to be a finite group, so you can talk about its order. So the order of this group is going to be order of G1 into order of G2 into order of Gn. So it's a product of this, right? Hold on for 1 minute. Yeah, so this was something we discussed that कि कितने elements होंगे उन groups में इस external direct product groups में. तो हमें पता है Z2 direct product with Z3 में 6 elements होने वाले हैं, but हमने prove किया क्योंकि इसका एक generator element है और उसमें एक cyclic group बन गया है, so it turns out to be isomorphic to Z6. And then we raised this general question that Zn direct product with Zm, so is it going to be isomorphic to Znm? So I told you not in general. So this is not true in general. So we will be doing this result जिससे हमें पता चलेगा कि कब ये ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक होगा या कब नहीं होगा, या और भी क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में. Okay, so before going to those theoretical results, let me give you one more example quickly of a group which is telling me that this information is any group of order 4 is isomorphic to Z4 or Z2 direct product with Z2. Okay, so we have to prove this for any group of order 4. So let G be a group of order 4. Okay, so there are now two cases. It's a finite group. There are now two cases. It can be cyclic or it can be non-cyclic. So case 1, if G is cyclic, then yes, what should I imply from here? If G is cyclic, then it will be isomorphic to Zn, where n is the order of G. Yeah, means here we can talk about Z4 because we know that any finite group of order n is isomorphic to Zn. So definitely the G in this case is isomorphic to Z4. So first case is done. So that means now we have to look for the case if G is not cyclic. So clearly actually here we have to prove that it is isomorphic to this one Z2 direct product with Z2, क्योंकि दो ही ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हो सकता है एज पर दिस रिजल्ट. तो साइक्लिक के केस में तो वो साइक्लिक के ही आइसोमॉर्फिक होगा, सो दैट इज Z4. तो नॉट साइक्लिक के केस में वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा. सो लेट्स सी हाउ टू वी प्रूव दैट. सो G is not cyclic, then suppose G is having this kind of elements A, B, E, that is identity element A, B, and then the fourth element is definitely going to be AB because closure law भी तो hold करना है ना. अगर साइक्लिक होता तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते,
because A would have been the generator, so every element would have been written in the power of A. So this would have been अगर cyclic होता, but हम non cyclic लेके चल रहे हैं, so that means उसमें ऐसे elements होंगे जिसका कोई भी single generator नहीं है. So there will be identity element, and other than that there will be two other elements, and the fourth element definitely has to be A into B, means because closure has to be satisfied. So if G is not cyclic, so it will be this form. And order of these elements will be equals to, so can anybody tell what will be the order of these elements? Element का order क्या होगा? इन सब का एक ही order होगा. What that will be? 2. 2. Yes. Why it is 2? Because A, it is not cyclic, so one order nahi hoga, and the order of G is 4. So yes, again cyclic nahi hoga, to fir order G ke order ke barabar nahi Yeah, hoga. you are right. So we got the result. Thank you. That order of G is 4. तो किसी भी ग्रुप का जो भी ऑर्डर होता है तो उसके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उस 4 के डिवाइजर ही हो सकते हैं. दिस इज द रिजल्ट. इफ A is an element of a finite group, so the order of A should be a divisor of order of G. और 4 के डिवाइजर्स हमारे पास हैं 1, 2 and 4. तो 4 ऑर्डर नहीं हो सकता है क्योंकि अगर 4 ऑर्डर वाला एक भी एलिमेंट हो गया तो वो तो जनरेटर हो जाएगा. बिकॉज जनरेटर एलिमेंट की प्रॉपर्टी यही होती है कि एग्जैक्टली ग्रुप के ऑर्डर वाला एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए. दैट मीन्स 4 वाला भी नहीं हो सकता है, और 1 ऑर्डर वाला एक ही एलिमेंट होता है विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 नहीं होता है बिकॉज e रेज टू पावर 1 इज e. तो ओनली पॉसिबिलिटी इज बाकी जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर 2 ही होगा. सो दैट इज व्हाई दीज 3 विल हैव ऑर्डर 2 ओनली एज एन एलिमेंट्स, राइट. सो इनका ऑर्डर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है. So now what we are supposed to do, we have to prove it is isomorphic to Z2 direct product with Z2. So if you map down, if you write down what will be the elements here, so there will be 4 elements: 0 0 0 1 1 0 and 1 1, because हमें पता है Z2 contains only 2 elements 0 and 1. तो जब आप direct product of Z2 with Z2 लोगे, so there will be 4 combinations coming: 0 0 0 1 1 0 1 1 0. So these will be 4 elements. अब ये भी 4 elements हैं, ये भी 4 elements हैं. देखो, जब इन जनरल हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है तो एक मैप डिफाइन करके हमें दिखाना पड़ेगा. तो जब ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं या इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं तब हम मैप को प्रॉपरली एज अ फंक्शन डिफाइन करते हैं. बट यहाँ पे सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं, सो यू कैन जस्ट शो द मैपिंग. फोन आ रहा था तो यू कैन जस्ट शो द मैपिंग. सो लेट मी जस्ट शो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे मैप होगा. सो इफ यू डिफाइन द मैपिंग इन अ वे, बिकॉज isomorphism है तो identity will get mapped to identity only. So identity will be going to 0 0, means ये वाली identity is going to be mapped to 0 0. Okay, A को आप किसी भी एलिमेंट पे मैप कर दीजिए. मैं 1 0 पे मैप कर रही हूँ, और B को हम 0 1 पे मैप कर रहे हैं, और C means the third element, fourth element which is AB, उसको हम 1 1 पे मैप कर रहे हैं. एंड दिस विल बी वैलिड बिकॉज यहाँ पे मैंने उसको जनरल ग्रुप सपोज किया था, सो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लिया है, बट हमें यहाँ पे ऑपरेशन पता है. कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन ऑपरेशन है, राइट. सो आई नो दैट इफ A is 1 0, B is 0 1, then A plus B is 1 0 plus 0 1, which is 1 1, means 1 1 can be obtained by adding the two other elements. जैसे AB was being obtained in G by multiplying A and B, similarly 1 1 is obtained by adding 1 0 and 0 1. So this is how the mapping is defined. और ये 1 1 मैपिंग है क्योंकि हमने खुद डिफाइन ही ऐसे की है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है यूनिक. सो दिस इज 1 1, और क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उन भी हो गया. देयरफॉर ये मैप आइसोमॉर्फिज्म हो गया. और अगर आप इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके देखना चाहते हो, राइट, तो आप ऐसे कर डिफाइन मैपिंग फाई फ्रॉम G to Z2 प्लस Z2 एज. तो ये तो मैंने मैप को डिफाइन किया है, फिर मैंने बोल दिया ये बातमान भी है. सो क्लियरली G is isomorphism. तो होमोमॉर्फिज्म वाला पार्ट आप खुद वेरीफाई कर सकते हो. होमोमॉर्फिज्म की आपको प्रॉपर्टी जो है
क्लियरली, सॉरी, phi इज आइसोमॉर्फिक, तो वो आप वेरीफाई करके देख सकते। तो डन, तो प्रूव हो गया G is isomorphic to Z2 plus Z2. So you have proved the general result कि any group of order 4 is either cyclic. So if it is cyclic, it is isomorphic to Z4. If it is not cyclic, then it is isomorphic to the direct product of Z2 and Z2. Is it clear to everyone? Is the proof clear to everyone? So now we are moving towards next result, which is theorem 1 of this chapter. So वो result को use करके हम एक बड़ा result prove करेंगे. So let me just give you the statement of theorem 1, which says that the order of an element in a direct product of finite number of finite groups भी finite है और उनका collection भी finite है, is the least common multiple of orders of the components of the element. Means, let me write it in symbols. So if you have an element G1, G2, Gn, which is a n tuple, तो उसका order क्या होगा? Is going to be LCM of individual orders. G1 का order, G2 का order और Gn का ऑर्डर। और क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन है कि सारे ग्रुप्स फाइनाइट ग्रुप्स हैं, तो ऑब्वियसली फाइनाइट ग्रुप्स में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है, वेल डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट ग्रुप्स में गारंटी नहीं होती है कि सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट भी हो सकता है। सो यहाँ पे फाइनाइट के लिए ही बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम कि एक एलिमेंट एज अ टपल, उसका ऑर्डर क्या होगा, इज गोइंग टू बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स। सो लेट S be LCM of the elements individual orders, right? The S ले लिया and T be the order of this tuple, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं। तो what we want to prove, S is equal to T, right? So now you consider G1, G2, मतलब मैंने ये एलिमेंट कंसिडर किया, उसकी पावर की S. So by the definition of the group operation of external direct product, so we know that इसमें कोई भी operation component wise होता है. So raised to power S means individually component wise वो S हो जाएगा. So G1S, G2S, GNS. Yes, what it is going to be. S के बारे में मुझे इतनी information है कि ये LCM है इनके individual orders का. So G1 का order कुछ भी हो सकता है, G2 का order कुछ भी हो सकता है, अभी हमने उसको define नहीं किया है, but हमें इतना पता है कि S is going to be a multiple of their orders. So yes, what is this element equal to? What it should be? Identities of each element. या आइडेंटिटीज हो जाएंगे ना, क्योंकि मल्टीपल हैं, राइट? तो हमें पता है कि किसी भी उसका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर उसके ऑर्डर का मल्टीपल रेज्ड टू पावर करते हो तो आइडेंटिटी ही बनेगा. दिस इज समथिंग वी नो. सो ये आइडेंटिटी बन जाएगा. सो अब आप इस एलिमेंट की बात करो, तो ये जो एलिमेंट आपने लिखा है टपल, तो उसकी एक पावर मिल गई आपको S, which is going to act as identity. और ये हमें पता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है, so this is nothing but identity of your group, which is the external direct product. तो अगर एक पावर आपको मिल गई है जो आइडेंटिटी बना रही है, it implies T is less than equals to S, क्योंकि T क्या हमने सपोज किया है, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट टपल, तो ऑर्डर उससे कम ही होगा, राइट? क्योंकि आपको एक पावर मिल गई है जो आइडेंटिटी बना रही है. सो दैट मीन्स
order of that element is going to be less than equals to that. या ऐसे होगा या ऐसे कम होगा. So mark this equation number 1, inequality number 1. So now you consider the other way around. So if you consider G1T, G2T, GNT, means individually G1, G2, Gn को मैंने पावर कर दिया T. So this by the same property is actually going to be this, and again this is going to be identity, क्योंकि T तो इस टप्पल एलिमेंट का ऑर्डर ही है, तो उसकी रेज टू पावर करने से तो आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा, राइट. सो इट इम्प्लाइज, अब आप कंपोनेंट वाइज कंपेयर करो ना, तो ये आप कर सकते हो. जैसे मैं लिखूं ए बी इज इक्वल टू 1,2, सो आई कैन इम्प्लाई ए इज 1 एंड बी इज 2. सो अगर ये इंडिविजुअली आइडेंटिटी बन रहे हैं, सो दैट मीन्स इंडिविजुअली जी आई रेज टू पावर, sorry there is no ti, individually gi raised to power t is identity for all e. okay, तो अब GIs के ओरिजिनल ऑर्डर्स कुछ भी हो, कोई ऐसा एलिमेंट है t जिसकी पावर आइडेंटिटी बन रही है, इट इम्प्लाइज व्हाट, t इज अ मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ GI. इज इट क्लियर? क्योंकि अगर कोई उनका ऑर्डर कुछ भी है, अगर एक पावर आइडेंटिटी बना रही है, सो दैट मीन्स उनका जो ये पावर है उनके ऑर्डर का मल्टीपल ही होगी. सर सेम आर्गुमेंट जो हमने ऊपर यूज किया है, बस उसको ऑपोजिट सेंस में यूज कर रहे हैं. वहां पे हमने कहा था कि एलिमेंट क्योंकि मल्टीपल है तो रेज टू पावर करके आइडेंटिटी बनाएगा. यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर कोई एलिमेंट है जिसको रेज टू पावर करके एज एन इंटीजर आइडेंटिटी आ रहा है, सो दैट इंटीजर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर. सो इट्स द सेम आर्गुमेंट. So it implies T is a multiple of GIs for all GI, means ये सबका multiple होगा, G1 का भी, sorry order of G1 का भी, order of G2 का भी, order of G3 का भी, order of Gn का भी. But हमें पता है S क्या है, least common multiple है इनका, G1 का, G2 का, Gn का. So it implies T is greater than equals to S. T भी मल्टीपल है, S भी मल्टीपल है, बट S जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा है. सो दैट मीन्स T हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू S. सो दिस क्लियरली मीन्स that T is equal to S, and this is what exactly we wanted to prove, right? S is equal to T. Is the proof clear to everybody? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ, yes बोलिए. मैम जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है t लेस देन इज इक्वल्स टू s, मैम प्लीज वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दो कैसे आई. ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन. तो ये हमारा टू प्रूफ है. तो व्हाट आई स्टार्टेड विद, एक एलिमेंट लिया G1, G2, Gn, आपके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का n टप्पल, उसकी पावर मैंने कर दी S. S के बारे में मुझे इतना पता है कि S इज व्हाट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ G1, G2, Gn. मान लो G1 का ऑर्डर 2 है, सपोज G2 का ऑर्डर 3 है, तो 2 into 3, 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6. तो S is like that, it's a LCM of their individual orders. यहाँ से ये कैसे आया, is it clear? यस मैम. ये तो ग्रुप की डेफिनेशन है, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे ही कंपोनेंट वाइज ही ऑपरेट होता है. तो फिर अब हमें पता है कि क्योंकि G1, G2, Gn के इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो भी हों, S उनका मल्टीपल ही है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब वो सबका ही मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, तो सब आइडेंटिटी ही बनेगी, राइट. तो ये E1, E2, En बन जाएंगे, विच इज आइडेंटिटी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. तो दैट मीन्स ये आपके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक जनरल एलिमेंट था जिसकी कोई पावर की, और वो पावर क्या बन गई, आइडेंटिटी. तो इट इम्प्लाइज जो उस एलिमेंट का ऑर्डर है वो उससे कम ही होगा, क्योंकि ऑर्डर की क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि अगर आपको कोई पावर मिल गई है जो आइडेंटिटी बन रही है, सो ऑर्डर इज द लीस्ट सच लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. क्योंकि अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि कोई एलिमेंट है, उसकी पावर 4th पावर आइडेंटिटी बन रही है, तो उसका ऑर्डर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है. मीन्स अगर वो एलिमेंट खुद भी आइडेंटिटी हो सकता है. तो जब भी आपको किसी एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी मिलती है, तो ऑर्डर विल बी अ डिवाइजर ऑफ दैट ओनली, राइट. तो अभी हम डिवाइजर नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ लेस देन इक्वल टू यूज कर रहे हैं. इट इम्प्लाइज T इज लेस देन इक्वल्स टू S.
क्योंकि या तो ऑर्डर एस से होगा या एस से छोटा होगा, क्योंकि अगर एस से बड़ा नहीं आप कह सकते हो ना, मिनिमम एस पावर तो मिली गई है जो आइडेंटिटी बना रही है, तो ऑर्डर एस से बड़ा तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Okay, so this completes the proof of this theorem. So now let me go ahead to the next theorem. इसकी examples भी करेंगे, इस theorem के results को use कर सकते हैं बहुत सारी examples में elements के orders find करने के लिए. I'll do that, but let me first prove the next theorem. It says that let G and H be finite साइक्लिक ग्रुप्स। अब जो प्रीवियस रिजल्ट हमने किया है वो साइक्लिक के लिए नहीं था, वो फाइनाइट के लिए था। ओके, साइक्लिक हो चाहे नहीं हो, वो जनरली ट्रू है क्योंकि वहां पे हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। सो वी हैव टू ग्रुप्स G and H, then the external direct product of G and H is cyclic if and only if order of G and order of H are relatively prime. Order of G means ये order of group की बात हो रही है, तो आप ये वाली notation भी use कर सकते हो। Order of G and order of H are relatively prime. So इसको prove करने के बाद आपको देखो वो पता चल जाएगा argument जो मैंने ऊपर दिया था, जैसे हमने prove किया था Z2 प्लस Z3 मीन Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z3, हमने प्रूव किया ना कि ये साइक्लिक है, और क्योंकि ये साइक्लिक है और इसका ऑर्डर 6 है, सो दिस टर्न्स आउट टू बी इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। बट उसके बाद हमने जो प्रूव किया Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z2, तो Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z2 एक्चुअली ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक होता है ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है, वो साइक्लिक नहीं है। सो और ऐसे आप बहुत सारे वो रिजल्ट बता सकते हो एग्जांपल से कि कौन सा वाला साइक्लिक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन हियर? सो दिस इज टेलिंग यू ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H को प्राइम होने चाहिए। अब Z2 का ऑर्डर कितना है? 2, Z3 का ऑर्डर कितना है? 3, मींस कितने एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में। सो क्योंकि 2 और 3 का GCD इज 1, देयरफॉर वो साइक्लिक होगा, और इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा क्योंकि वो साइक्लिक है तो वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। इट्स ऑलवेज 2 into 3 मल्टीपल्स, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड मल्टीपल इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो लेट्स फर्स्ट प्रूव दिस वन। तो आपको इसकी ग्रुप की रिजल्ट की फिर यूटिलिटी बाद में हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। One second, just give me a minute. Okay, I need to connect the charger. Just give me 1 minute. Okay, so now we want to prove this result, then when it is going to be cyclic, if and only if they are relatively prime. So it's an if and only if result, so we will be proving in 2 parts. So firstly you assume, so let order of G be M and order of H be N, then what is the order of G direct product with H? दिस इज M into N। ये तो जनरल रिजल्ट है, ये मैंने आपको लेक्चर की बिगनिंग में यहाँ पे बताया था कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मल्टीपल ऑफ दैट। इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, ये सिंपली मल्टीपल होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऑर्डर का प्रोडक्ट, इंडिविजुअल ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर का प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज ट्रू, इसको प्रूव करने की जरूरत है। नाउ सपोज
पहले हम सपोज कर रहे हैं कि ये साइक्लिक है, then what we want to prove in this case that M and N are co-prime, that is greatest common divisor of M and N is 1. This is what we want to prove, right? So suppose GCD of Mn is something, हमें D को 1 प्रूव करना है, तो suppose GCD है कुछ which is D, and since direct product of G and H हमने assume किया है कि वो cyclic है, तो उसका कोई generator exist करता होगा. So there exist G, H belonging to this group such that GH is the generator of G plus H. यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो G plus H is being generated by the element GH, क्योंकि cyclic आपने assume किया है तो उसका कोई generator होगा. अब क्योंकि वो generator है, so what is the order of this element? Yes, what it will be? M into N. M into N. जो ग्रुप का ऑर्डर है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा. ग्रुप का ऑर्डर m into n है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी m into n ही होगा, राइट? सो दिस इज वन थिंग वी नो ऑलरेडी. ऑल्सो व्हाट डू यू डू, इस एलिमेंट की अब हम रेज टू पावर कर रहे हैं mn by d. अब इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन दैट mn बाई डी जो होगा वो एक इंटीजर होगा, क्योंकि डी जो है डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है एम और एन दोनों का, तो ऑब्वियसली इट्स नेवर गोइंग टू बी अ नॉन इंटीजर, वो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इंटीजर. सो आई मीन दिस पावर इज मेकिंग सेंस, क्योंकि हम इंटीग्रल पावर्स करते हैं एलिमेंट्स की, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटीजर. या सो नाउ वी नीड टू इवैल्यूएट कि ये पावर क्या होगी. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, इसको पहले कंपोनेंट वाइज कर लेते हैं. mn by d, h की पावर mn by d. नाउ g m n by d, h n m by d. एलिमेंट वही चल रहा है gh, मैंने उसको एलिमेंट वाइज पावर को इनसाइड लिया और फिर इसको फर्दर ऐसे किया. व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई नो दैट g का एलिमेंट है और h जो है h का एलिमेंट है, और ऑर्डर ऑफ g जो है n है और ऑर्डर ऑफ h जो है वो n है, राइट? अब क्योंकि cos g belongs to g और ग्रुप का ऑर्डर m है, तो g की पावर m आइडेंटिटी होगा. उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो जनरेटर है g का नहीं है, बट उसकी पावर हमें पता है, वो m आइडेंटिटी होगा. ये भी प्रॉपर्टी ट्रू होती है, ये भी हमने साइक्लिक ग्रुप्स में करी है, फाइनाइट ग्रुप्स में. इंडिविजुअली g और h तो आपको साइक्लिक गिवन ही है ना, राइट? और तो ये हमने वन ऑफ द प्रॉपर्टी की हुई है कि जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा वो रेज टू पावर तो हमेशा आइडेंटिटी बनाएगा ही बनाएगा. तो यहाँ पे बी केयरफुल, मैं ये नहीं इंफॉर्मेशन यूज कर रही हूँ कि जी जो है वो कैपिटल जी का जनरेटर है या एच जो है कैपिटल एच का जनरेटर है. आई एम नॉट यूजिंग दैट, वो जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये ट्रू ही होगा, राइट? तो gm इज आइडेंटिटी, hn इज ऑल्सो आइडेंटिटी. लेट मी राइट दिस E1 E2, क्योंकि E1 जो है is identity of group G and E2 जो है is identity of H, right? So this is E1 raised to power n by d, E2 raised to power n by d. अब identity की power कुछ भी करो integer, वो identity ही बनेगा. So this is E1 E2, right? Clear है ये explanation सबको? Yes, ma'am. हमने एक एलिमेंट लिया GH, उसकी पावर कर दी mn by d और वो आइडेंटिटी आ गया. सो वही लॉजिक कि अगर हमें कोई भी पावर ऐसी मिलती है जो रेज टू पावर करके किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी बना रही है, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू दैट, क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी बना रही है. सो इफ आई कॉल दिस 1 एंड इफ आई कॉल दिस 2, सो 1 के अकॉर्डिंग तो उस एलिमेंट का ऑर्डर m into n है और 2 के अकॉर्डिंग ये है. इट इम्प्लाइज m into n इज लेस देन इक्वल्स टू
Mn by D. So which is only possible when it is possible if D is 1, क्योंकि अगर D 1 से बड़ा हो गया तो हमें पता है Mn by D is going to be strictly less than Mn. डिवाइजर हो जाएगा ना, तो वो कैंसिल कर देगा, तो स्ट्रिक्टली लेस देन Mn हो जाएगा. सो दैट मीन्स दिस इज ओनली पॉसिबल, और वो भी लेस नहीं होगा, इक्वली होंगे when D is equal to 1. So this is what we wanted to prove, that GCD of M and N is 1. D हमने suppose किया था GCD of M and N, so 1 proof हो गया. So one part of the theorem is done. Now we have to move to next part, which is conversely. So conversely हमने suppose कर लिया GCD of Mn is 1, and what we want to prove that direct product of G and H is cyclic, right? So यहाँ पे हम जनरेटर वाला यूज करेंगे. अब G का कोई जनरेटर होगा. अब वन थिंग, यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट को साइक्लिक प्रूव करना है. सो अगेन द सेम आइडियोलॉजी, जब आपको किसी ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना है तो आपको उसका जनरेटर एग्जिस्ट करा के दिखाना पड़ेगा कि उसका एक जनरेटर है. तो मैंने मान लिया कि कैपिटल G का एक जनरेटर है, क्योंकि कैपिटल G इज साइक्लिक. ये तो गिवन ही है, अब ये तो स्टेटमेंट में गिवन ही है कि G और H इंडिविजुअली जो है साइक्लिक ग्रुप्स है, तो उनका तो जनरेटर होगा ही होगा. तो सपोज कैपिटल G is generated by small g, capital H is generated by small h, right? Now you form an element GH. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर इज गोइंग टू बी LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H. ये कहाँ से आया रिजल्ट? फ्रॉम वेयर दिस रिजल्ट वी हैव पिक्ड अप? Previous theorem, yeah. So यहाँ पे this is where I was saying that theorem is used here. So this is from theorem 1, right? Now what is order of G and what is order of H? Again, the order of G is going to be the order of G because वो उसका generator है, which is M, और order of H is N. So this is LCM of M and N. So but M and N are co-prime, so LCM of M and N is going to be simply M into N. ये सबको पता है कि अगर कोई दो इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम है तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही हो सकता है, which is M into N, right? 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6 only, 2 into 3. 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 20 only, which is 4 into 5. So when we have co-prime integers, their LCM is simply their product. So प्रूव हो गया. तो एक एलिमेंट मिल गया है जिसका ऑर्डर किसके इक्वल है? ग्रुप के ही ऑर्डर के इक्वल है. सो इट इम्प्लाइज यस, दिस इज साइक्लिक एंड generated by GH, where G is the generator of G, H is the generator of H. Sorry, मैंने उल्टा लिख दिया. तो इससे आपको पता भी चल गया है कि साइक्लिक ग्रुप तो वो होगा, और उसका जनरेटर फिर कौन सा होगा? तो उसका जनरेटर यही होगा जो इंडिविजुअल जनरेटर से बनेगा. इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए जनरेटर हम होना जरूरी नहीं था, बट सेकंड पार्ट से आपको पता चल गया है. सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. सो दिस इज प्रूव्ड. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. So now I'll give you a general statement of this. इसका एक generalized statement भी है. ये सिर्फ दो के लिए था, दो ग्रुप्स के लिए G और H. So after that we have this result in general true. So which says that an external direct product G1, G2, Gn of a finite number of finite cyclic groups, right? तो finite cyclic होने चाहिए सारे. And this external direct product is cyclic if and only if
order of GI, order of GJ are relatively prime for all I, J, I not equals to J. Means they should be co-prime pairwise. Okay, they should be co-prime pairwise. Okay, pairwise का मतलब in pairs co-prime का मतलब आप समझते हो. So if I'll just explain you there. जैसे 3 नंबर्स हैं, 2 में तो देखो पेयर ही होता है, तो 2 में तो पेयर वाइज बोलो या सिंपली को-प्राइम बोलो या रिलेटिवली प्राइम बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. बट जब 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, से यू हैव 2, 3, 5, so these are co-prime because greatest common divisor of GCD of 2, 3 and 5 is 1. Okay, तो they are co-prime. But अगर मैं ये पूछूं कि are they pair wise co-prime, so still the answer is yes. तो इसमें हर एक पेयर 2 और 3 का GCD भी 1 है, 2 और 5 का GCD भी 1 है, और 3 और 5 का GCD भी 1 है. यही 3 पेयर बनेंगे इन तीनों में से. तो ये वैसे भी को-प्राइम है, पेयर वाइज को-प्राइम भी. को-प्राइम एंड रिलेटिवली प्राइम आर द सेम थिंग. अगर कोई उसमें भी कंफ्यूज हो रहा है तो सो दे आर द सेम थिंग. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाट वी डिमांड फ्रॉम दिस थ्योरम, दे शुड बी पेयर वाइज को-प्राइम. सो नाउ विल गिव यू एन एग्जांपल पेयर वाइज को-प्राइम जहाँ पे नहीं हो सकते हैं. So if you take 2 to 3, 3 इंटीजर्स ले लिए मैंने, 2 to 3, they are co-prime because इन तीनों का अगर मैं इकट्ठा एक कॉमन डिवाइजर देखूं, so that is not there 1, क्योंकि 2 और 2 का तो डिवाइजर है, बट 3 के साथ उनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो ओवरऑल कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1. So they are co-prime, but they are not pair wise co-prime. Why they are not pairwise co-prime? Everybody can see that. क्योंकि 2 और 2 जो है, their GCD is 2, which is not equal to 1. तो जब भी आप एक set of positive integers को label कर रहे हो, are they co-prime or not? So be very careful what you're labeling. You're simply saying co-prime or you're saying pairwise co-prime. So being pairwise co-prime is a स्ट्रॉन्गर थिंग. सो अगर कोई कलेक्शन पेयर वाइज कोप्राइम होंगे तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल भी कोप्राइम ही होंगे, बट अगर ओवरऑल कोप्राइम है सो डज नॉट मीन वो पेयर वाइज कोप्राइम होंगे. दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बेसिक रिजल्ट्स हैं नंबर के, सो एवरीबडी शुड नो, बट बी वेरी केयरफुल क्योंकि इस थ्योरम के क्रॉलरी की इम्प्लीमेंटेशन पे आपको ये ध्यान रखना है that which pair you have to pick up. So ये सभी pairs के लिए होना चाहिए. That's why it's written for all ij and obviously I is not equal to j. अलग अलग ही चूज करोगे, जैसे G2 का G4 के साथ देखोगे, G1 का G3 के साथ देखोगे. So this is how you have to see. So this is a even general result than the previous theorem. वहाँ पे 2 के लिए था तो हमने बोल दिया वो रिजल्ट n finite cyclic groups के लिए भी ट्रू है. तो इसका ऐसा प्रूफ नहीं है because proof is going to be on the similar lines, so you can just directly use this in examples. Then we come to corollary 2. corollary 2 basically यही है, but अब हम particular groups में जाएंगे जिनमें हम interested होते हैं, because when you are talking about finite cyclic groups, so we know finite cyclic groups सारे Zn type के ही होते हैं, so that's why our results will be more precise if we explain them in terms of Zns. So we are saying Zn1, direct product Zn2, direct product Zn k. So finite collection है, k groups हैं और individually obviously finite cyclic groups हैं. So this is isomorphic to Zn1, n2, nk if and only if Ni and Nj are relatively prime I not equals to j for all I j. तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में पोज किया था कि Z2
और Z3, Z2 Z3 का डायरेक्ट प्रोडक्ट तो साइक्लिक है, इंडिविजुअली हमें पता है Z2 और Z3 क्या थे, इंडिविजुअली हमें पता है साइक्लिक, तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक आ गया और वो आइसोमॉर्फिक आ गया Z6। ओके, बट ये क्यों आया? बिकॉज GCD ऑफ 2 and 3 इज 1। तो यहाँ से आपको अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन इजिली आंसर कि कौन सा साइक्लिक होगा और कौन सा साइक्लिक नहीं होगा। सो आई कैन इमीडिएटली गिव यू examples. So if you ask me Z2 direct product with Z4, is this cyclic? No, ma'am. Right? No. So you simply have to write because GCD of 2 and 4 is 2, which is not equal to 1. तो दो में आपको दोनों का ही obviously GCD देखना है, अगर 1 आ गया तो yes cyclic, अगर नहीं आया तो not cyclic. So next is Z5 direct product Z6. Is this cyclic? Yes. So the answer is yes. Why? Because GCD of 5 and 6 is 1. And now because you know it is cyclic, so further question will be to which group this is isomorphic to? Z30. या सो वो इजी है हमेशा m/n। सो वो यही रिजल्ट था जो ऊपर ये क्रॉलरी 2 की स्टेटमेंट है कि ये साइक्लिक हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ इंडिविजुअली ये रिलेटिवली प्राइम है और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा Zn1 n2 nk। सो यू सिंपली मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर, उसके ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो ये Z30 के आइसोमॉर्फिक हो गया हमारे पास। ओके, सो आई कैन डू वन more quick exercise, say another example, जिसमें पूरा ग्रुप अगर नहीं भी साइक्लिक है फिर भी हम उसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रुप है Z2 Z2 Z3 Z5, right? So this is not cyclic because इसमें 2 और 2 जो है एक पेयर आ रहा है जो कोप्राइम नहीं है। ओवरऑल GCD 1 है 2 3 5 का, बट वी नो दैट 2 it's not pair wise कोप्राइम। The orders of groups are not pair wise कोप्राइम। तो ये हमें पता है साइक्लिक नहीं होगा, बट स्टिल आई कैन रिड्यूस इट, आई कैन फाइंड अनदर ग्रुप टू विच इट विल बी आइसोमॉर्फिक। सो इट कैन बी आइसोमॉर्फिक टू, आप इसमें अगर इस पेयर को उठाओ Z2 और Z3, तो ये Z6 के आइसोमॉर्फिक है बिकॉज 2 और 3 को प्राइम है, तो आप उनका पेयर उठा सकते हो, उनका आइसोमॉर्फिक साइक्लिक ग्रुप लिख सकते हो। सो Z2 और Z3 विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6 and that is Z5. अब आप 6 और 5 को उठा सकते हो, 6 और 5 are co-prime, so 6 और 5 will be Z30। बस आगे नहीं कर सकते हम कंबाइन बिकॉज 2 और 30 जो है co-prime नहीं है। Now why I am doing this is because these type of questions have applications। इस तरह के questions आते हैं कि find all possible groups of this particular order। जैसे ये इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 60, ये 3 ग्रुप्स मैंने लिखे हैं, दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, बट इंडिविजुअली अगर उनके कंपोनेंट वाइज देखो तो पहले में 4 टप्पल्स होंगे, इसमें 3 टप्पल्स होंगे, इसमें 2 टप्पल्स होंगे बिकॉज इट्स द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 4 ग्रुप्स, इट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड इट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2। so their groups structures are different but still they are isomorphic to each other and all of them are of order 60, but be careful they are not isomorphic to Z60 because उसके लिए 2 and 30 had to be co-prime, तो वो नहीं है satisfied, so ये group cyclic नहीं है, but these are different variants of this, right? तो similarly आप ऐसे भी कर सकते थे स्टार्टिंग में कि 2 और 5 को कंबाइन कर दिया, तो 2 और 5 को जैसे आप कंबाइन करोगे so you will get Z10 and then 2
and 3. अब 10 और 2 को तो combine नहीं कर सकते हैं because को prime नहीं है, but 2 और 3 को combine कर सकते हो. So you can have Z10 and Z6. So this is isomorphic to Z2 plus Z30. अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने 2 और 5 को कंबाइन कर लिया, कैसे, मतलब ऑर्डर क्या कोई भी चूज कर सकते हो, तो इसके लिए भी रिजल्ट होता है जिसमें अबिलियन की बात होती है, अबिलियननेस की बात होती है. सो वो बाद में आएगा रिजल्ट, मींस उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट या हियर यू कैन डू दैट. So we'll do more examples like this and few more theoretical results are left from this chapter. That's all about today. Okay, if you have any doubts, I'll take that up next time. Thank you.